Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyatan Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyatan सभी भक्तों का स्वागत। आज द्वादशी है, कल तुलसी विवाह था, तो कल तुलसी विवाह का जो प्रसंग है उसके ऊपर सबने जो है प्रार्थना की होगी। और आज जो भी प्रार्थना उन्होंने भक्ति में आगे बढ़ने की हो तो वो सफल हो। इसी के साथ में फिर हम आज का क्लास शुरू करते हैं। जो शीर्षक चल रहा है वो है श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला, अध्याय 18वां और श्लोक संख्या है 28। तो श्लोक शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। तो जो इस अध्याय का शीर्षक है महाराज परीक्षित कर्स्ड बाय अ ब्राह्मणा बॉय, और श्लोक संख्या पहला स्कंद 18वां अध्याय 28वां श्लोक। श्लोक इस प्रकार से है। अलब्धा तृणभूमिराधिर अशम प्राप्त्यर्घ्य सुनरत अग्वज्ञानतम इवात्मानं मन्यामानश्चुपोगहा। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The king, not received by any formal welcome by means of being offered a seat, place, water and sweet addresses, considered himself neglected, and so thinking he became angry. Purport. The law of reception in the codes of Vedic principles states that even if an enemy is received at home, he must be received with all respects. He should not be given a chance to understand that he has come into the house of an enemy. When Lord Krishna, accompanied by Arjuna and Bhima, approached Jarasanga in Magadha, the respectable enemies were given a royal reception by King Jarasanga. The guest enemy, namely Bhima, was to fight with Jarasanga, and yet they were given a grand reception. At night, they used to sit down together as friends and guests, and in the day, they used to fight, risking life and death. That was the law of reception. The reception law enjoins that a poor man who has nothing to offer his guest should be good enough to offer a straw mat for sitting, a glass of water for drinking, and some sweet words. Therefore, to receive a guest, either friend or a foe, there is no expense. It is only a question of good manners. When Maharaj Pariksit entered the door of Samika Rishi, he did not expect a royal reception by the Rishi because he knew that the saints and Rishis are not materially rich men. But he never expected that a seat of straw, a glass of water, and some sweet words would be denied to him. He was not an ordinary guest, nor was he an enemy of the Rishi, and therefore the cold reception by the Rishi astonished the king greatly. As a matter of fact, the king was right to get angry with Rishi when he needed a glass of water very badly. To become angry in such a grave situation was not unnatural for the king, but because the king himself was not less than a great saint, his becoming angry and taking actions were astonishing. So it must be accepted that it was so ordained by the supreme will of the Lord. The king was a great devotee of the Lord, and the saint was also as good as the king.
but by the will of the Lord. The circumstances were so created that they became ways to kings, becoming unattached to family connection and governmental activities, and thus becoming a completely surrendered soul unto the lotus feet of Lord Krishna. The merciful Lord sometimes creates such awkward situations, awkward positions for his pure devotees in order to drag them towards himself for the mire of material existence. But outwardly, the situations appear to be frustrating to the devotees. The devotees of the Lord are always under the protection of the Lord, and in any condition, frustrations or success, the Lord is a supreme guide for the devotees. The pure devotees therefore accept all conditions of frustrations as blessings from the Lord. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हरे कृष्णा। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये अध्याय जिसका शीर्षक मैंने बताया कि महाराज परीक्षित कर्स्ड बाय अ ब्राह्मण बॉय। तो इससे आपने पहले भी जो बहुत सारे वक्ता हैं यहाँ पर जिन्होंने इतनी अच्छी से अच्छी बातें बताई होंगी इन श्लोकों के बारे में, तो आज मुझे अवसर मिला है श्लोक संख्या 28 के ऊपर बात करने का। तो जैसे ये परपट पढ़ना इसके लिए जरूरी था क्योंकि इस परपट के अंदर बहुत सारी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं कि जो हम किसी जो हमारे घर पर अतिथि आते हैं तो अतिथि का किस तरह से सत्कार होना चाहिए, और ये जो कहा गया है ये शास्त्रों के माध्यम से कहा गया है। तो इस आगे चर्चा करने से पहले हम गुरु का आश्रय ले लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपापदायिने गौर कथादाम दयानगरतां। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक के माध्यम से हमको क्या पता चलता है और कौन कौन से जो हमारे डाउट्स हैं, क्या क्या हमारी शंका है उसका समाधान होता है। उन पहले जो प्रश्न हैं या ऐसे जो हमारे अंदर डाउट्स हैं, शंकाएं हैं, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक के अंदर बताया कि जो कोड ऑफ कंडक्ट, यानी अगर अतिथि हमारे घर पे आते हैं तो हम हमारे अंदर कौन सा शिष्टाचार होना चाहिए और किस तरह जो वेदों के अंदर वर्णित बातें बताई गई हैं, किस तरह से हमको उस अतिथि का हमको सत्कार करना चाहिए, वो इस श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से हमको पता चलता है। दूसरा, इसके अंदर से इस तात्पर्य के माध्यम से हमको पता चलता है कि क्या कारण था जिसकी वजह से परीक्षित महाराज जो है क्रोधित हो गए, और इतना मतलब जो इतने स्तर पर, इतने अच्छे भक्त होने के स्तर पर भी वो क्रोधित क्यों हुए, तो ये हमको इस तात्पर्य से पता चलता है। और तीसरा जो है कि भगवान ऐसे प्रकार के जो स्थितियां या ऐसे प्रकार के ऐसा प्रकार का जो सर्कमस्टेंसेस क्यों बनाते हैं भगवान कि मतलब ऐसे शुद्ध भक्तों को भी गुस्सा आ जाए। तो ये एक बात पता चलती है इस अध्याय के, इस श्लोक के तात्पर्य से। और जो शुद्ध भक्त होता है वो ऐसी स्थितियों के अंदर कैसे उसका जो रिएक्शन कैसे होता है, वो किस तरह से उसको रिएक्ट करता है, ये हमको पता चलता है। तो यहाँ पर मतलब जिस प्रकार से परीक्षित महाराज को गुस्सा आया, तो गुस्सा क्यों आया, तो ये भी हमको पता चलता है। तो हमको ये भी पता चलता है। और हम फिर एक जो है ये गुस्सा यानी क्रोध,
क्रोध क्यों आता है, क्रोध को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पहले हमने जो डाउट था कि व्हाट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, जो मतलब शास्त्रों के अंदर अतिथि के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, या हमारे घर पर कोई मेहमान आते हैं, उसको मेहमान जो है उर्दू शब्द है, यानी अतिथि हमारे घर पर आते हैं तो उनका कैसा सम्मान करना चाहिए, और वेदों के अंदर क्या इसके बारे में बताया गया है। तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जो the law of reception in the code of Vedic principles states that even if the enemy is received at home, अगर हमारा जो दुश्मन, हमारा शत्रु भी अगर हमारे घर पर आता है, तो उसको जब हमारे घर पर आता है तो उसे हमको किस तरह से उसका सत्कार करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन और भीम के साथ में जरासंध के राज्य के अंदर, मगध के अंदर गए थे, और वहां पर किस तरह जरासंध जो भीम के साथ में युद्ध करने वाला था, उसके बाद भी उन्होंने किस तरह अर्जुन, भीम और भगवान श्री कृष्ण का सत्कार किया, ये हमको श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के माध्यम से बताते हैं कि उनके साथ में बहुत अच्छा उनके साथ में सलूक हुआ, उनके साथ में बहुत अच्छा उनका आवभगत हुई। और उसके बाद में श्रील प्रभुपाद यहाँ पर वो भी लिखते हैं कि एट नाइट दे यूज्ड टू सिट टुगेदर, रात को जो है संध्या के समय, जैसे हमने देखा होगा महाभारत के अंदर, संध्या के समय, संध्या के बाद में जैसे सूर्यास्त हो गया तो सब मस्त हो जाते थे। ये सूर्यास्त हो गया यानी जितने भी शत्रु हैं वो शत्रु एक दूसरे के जो है कक्ष में जाके वहां बैठते थे, वहां पर खाते थे, पीते थे, वहां पर फिर अपने कक्ष में आके जो है आराम करते थे, और दूसरे दिन फिर युद्ध शुरू करते थे। तो अगर इस प्रकार से, मतलब जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे ये ऐसे एहसास हुआ कि हम छोटी छोटी बातों से किसी के साथ में रुष्ट हो जाते हैं, और रुष्ट होने के बाद में हम उससे वार्तालाप करना बंद कर देते हैं, और इतनी स्थिति आ जाती है कि एक भाई है जो एक ही घर में रहता है, उसके बाद भी हम उसके साथ में संपर्क करना छोड़ देते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों के अंदर क्या बताया है कि शत्रु है जो उसका मतलब जो रियल एनिमी है, उसके साथ में भी वो सायंकाल के अंदर यानी रात्रि के समय बैठकर उनके साथ में बातचीत करते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं। तो अगर ऐसा हम प्रयास करें अपने अपने जीवन के अंदर, आजकल के इस दौर के अंदर, आजकल के जो ये कलयुग के अंदर, इस स्थिति के अंदर अगर हम लोग ऐसे प्रकार का जो व्यवहार करना शुरू कर देंगे, तो मेरे ख्याल से कोई दुश्मन रहेगा ही नहीं, कोई शत्रु रहेगा ही नहीं। अगर साथ में बैठ के सायंकाल के समय पर साथ में बैठकर हम खाना खाएं, बातें करें और उससे गले वले मिलें, तो दूसरे दिन युद्ध करने का तो जो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये कितनी अच्छी बात थी, मतलब कहने का अर्थ ये था, उनको ड्यूटी ये थी, उनको अपनी ड्यूटी पता थी कि मुझे इनके साथ में युद्ध करना है, कोई भी कारण हो इस वजह से मुझे युद्ध करना है, मगर सायंकाल के समय उन सब चीजों को भूलकर एक साथ में बैठ के बात करना कितनी अच्छी बात है हमारे शास्त्र के अंदर। फिर उसके बाद में होता है द रिसेप्शन ऑफ द लॉ एंजॉयिंग दैट पुअर मैन। तो इसमें यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अगर किसी की स्थिति ऐसी नहीं है, वो माली हालत में ठीक नहीं है, बहुत गरीब है, तो भी वो कम से कम इतना तो कर ही सकता है, जो अतिथि आता है उसको वो एक ढब का आसन उसको प्रदान करे, जल का एक जो है ग्लास वो उसको प्रदान करे, और उसके साथ में जो कुछ मीठे शब्द उसकी जो फैमिली के बारे में बात करे, या कुछ भी ऐसे करके जो अच्छे शब्द उसके साथ में बात करे, तो इसमें कोई खर्चा नहीं लगता, इसमें कोई भी जो है पैसा व्यय नहीं होता। ये इस तरह से वो अगर अतिथि हमारे घर में आता है तो उसको अच्छा लगता है। तो ये जो बातें हैं, और ये श्रील प्रभुपाद बताते हैं, ये जो है कोई बहुत महंगी या ऐसी कोई चीज नहीं जिससे कि हम अपने मित्र या शत्रु को हम ऐसे उसके साथ में हम ऐसा व्यवहार न कर सकें। तो प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ गुड मैनर्स। तो ये हमारे संस्कार हैं, जो हमारे शास्त्रों के माध्यम से हमको मिलते हैं। इसलिए हमको हमारे शास्त्रों के माध्यम से हमको ये सीखना चाहिए कि जो भी हमारे घर पर आता है, अतिथि आता है, तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में ये भी कहा है अतिथि देवो भव, यानी जिस प्रकार आप देव यानी भगवान के जो अनुयायी हैं, देव है,
उनकी हम आवभगत कैसे करेंगे, उनके साथ में हम कैसा व्यवहार करेंगे, उसी प्रकार से हमको जो हमारे अतिथि हैं उसके साथ में व्यवहार करना चाहिए। तो व्हेन परीक्षित, अब फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न ये आता है, जो डाउट क्लियर होता है यहाँ पर, कि व्हाट इज द रीजन दैट परीक्षित महाराज सच एन एलिवेटेड सोल गॉट एंग्री। मतलब ये क्या कारण है कि जो परीक्षित महाराज है इतना क्रोधित हो गए, जबकि वो इतने अच्छे शुद्ध भक्त थे भगवान के, उसके बाद में भी वो क्यों मतलब जो है गुस्सा हो गए। तो टू बिकम एंग्री इन सच अ ग्रेट सिचुएशन वाज नॉट अननेचुरल फॉर द किंग। एक राजा है, राजा को अगर अतिथि, जबकि उसको पता है कि अतिथि का सत्कार कैसे करना चाहिए शास्त्रों के माध्यम से, और वो उसको सत्कार नहीं मिलता, तो ये स्वाभाविक है कि उनको क्रोध तो आएगा। मगर वो शुद्ध भक्त थे तो फिर इनको क्रोध क्यों आया? तो दूसरा प्रश्न फिर ये उठता है कि क्रोध, जब अगर वो शुद्ध भक्त थे तो उनको तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए, भगवान के अच्छे भक्त थे और उनको शास्त्रों का ज्ञान था, तो फिर उनको गुस्सा क्यों आया? तो यहाँ पर फिर श्रील प्रभुपाद दूसरे जो स्टैंजा, दूसरे पैराग्राफ में क्लियरली बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, द सर्कमस्टेंसेस वेर सो क्रिएटेड, यानी इस प्रकार की स्थितियां क्यों मतलब उत्पन्न की गई थी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, क्योंकि जो है परीक्षित महाराज अपने जो फैमिली है उनके जो फैमिली से वो जो है अनअटैच हो जाए, फैमिली से वो उनकी आसक्ति दूर हो जाए, और जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज हैं, जो उनके राज्य की संभालने की जो गतिविधियां हैं, उससे भी वो उनको जो है मतलब वो विरक्त हो जाए, उससे अलग हो जाए, एंड दस बिकमिंग कंप्लीटली सरेंडर हो। और अगर ऐसा हो जाएगा तो वो पूर्ण रूप से भगवान के आश्रय में जाएंगे, इसलिए भगवान ने ऐसी स्थिति का वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न की। तो ये दो कारण यहाँ पर बताएं श्रील प्रभुपाद ने हमने तान। हाउ डज अ प्योर डिवोटी रिएक्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस। इसके बाद में तीसरा प्रश्न यह आता है कि एक शुद्ध भक्त होता है, वो शुद्ध भक्त ऐसी स्थिति में नहीं, जब भी उसको गुस्सा आता है और गुस्से में वो कुछ बोल देता है और उसको मतलब उसका जो रिएक्शन मिलता है या उसको जो उन बातों का जो सामना करना पड़ता है, तो वो जो शुद्ध भक्त किस प्रकार से जो है इन बातों को का सामना करता है, तो श्रील प्रभुपाद अपने माध्यम में जो तात्पर्य के माध्यम से बताते हैं, तो प्योर डिवोटीज देयरफॉर एक्सेप्ट ऑल कंडीशंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एज ब्लेसिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड। जो भी जैसी भी स्थिति उस समय उत्पन्न हुई, तो शुद्ध भक्त होता है वो उसको भगवान की कृपा समझकर उसको एक्सेप्ट करता है, भगवान की कृपा समझ के उसको जो है कहता है कि भाई ठीक है, ये भगवान की अरेंजमेंट होगी, भगवान ने जो जैसे किया। तो इस वजह से हम देखेंगे आगे चल के कि परीक्षित महाराज को जब श्राप मिलता है तो वो चाहते तो वो उस श्राप का उल्लंघन कर सकते थे, उस श्राप को जो है वापस नलीफाई कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा ये भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा के माध्यम से मुझे जो है 7 दिनों का समय मिला है, और फिर हम आगे देखेंगे ये सब जो चर्चा होती है। तो now considering the situation of anger, what is the outcome in our life and what steps to be taken to control anger। तो अभी ये प्रश्न उठता है कि अगर सिचुएशन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब भी हमको काफी क्रोध आता है, हम तो उस स्तर पर भी नहीं है जिस स्तर पर परीक्षित महाराज थे, मगर अगर ऐसी जो क्रोध उत्पन्न होने वाली स्थिति आती है, तो हमको क्रोध को कैसे पहले कंट्रोल करना चाहिए, और ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसको हम जरा समझने का प्रयास करेंगे। तो ये तात्पर्य में नहीं है, ये जो बातें हैं मैंने लेक्चर्स के अंदर सुनी हुई है, तो उसके आधार पर मैं ये बता रहा हूँ, जो मैंने सुना है वही मैं आपके समक्ष जो है ना पेश कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक तत्वज्ञानी उन्होंने बताया है that anger is an alphabet short from danger। अगर एंगर की स्पेलिंग देखो तो ANGER है, और डेंजर की स्पेलिंग देखो तो DANGER है। सिर्फ D ऐड कर दोगे तो डेंजर हो जाता है। तो कहने का मतलब उस तत्वज्ञानी का मतलब ये था कि अगर आपको डेंजर यानी आपको ऐसी स्थिति से डेंजर स्थिति से बचना हो तो आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर आपको क्रोध आएगा तो आपकी आगे की स्थिति डेंजर में बदल जाएगी, एक ऐसी जो है खतरनाक जो स्थिति बन जाएगी जो आपके लिए हानिकारक हो सकती है और हानिकारक होगी। तो इसलिए आपको एंग्री यानी एंगर को छोड़ना चाहिए, और एंगर को हमको एंगर आना नहीं चाहिए हमारे पास। तो अभी हम ये देखते हैं कि एंगर आने से हमको कैसे रोकना चाहिए।
और एंगर अगर आता है तो उस एंगर को हम किस तरह से उसको कंट्रोल करें। तो उसको समझने के लिए एक सुंदर उदाहरण मैंने सुना था कि अगर आप एक तालाब है, बहुत सुंदर तालाब है जिसके अंदर जल जो है बहुत शुद्ध है, बहुत प्योर है, बहुत क्लीन है। वो जल के आगे उधर आप उसके तट पर, तालाब के तट पर बैठकर आप वहां पर पानी के अंदर जो मछलियां, अलग-अलग रंग-बिरंगी मछलियां जो तैर रही है उसको देखने का आप प्रयास कर रहे हो और देख रहे हो और उसका अनुभव ले रहे हो। आप शांत, और आपका मन एकदम शांत हो चुका है। इसी में कोई पीछे से आके एक छोटा-सा पत्थर जो है डाल देता, उठा के फेंकता है तालाब के अंदर, तो क्या होता है? तो पानी के अंदर रिपल्स, जिसको इंग्लिश में रिपल्स कहते हैं और हिंदी के अंदर तरंगे कहते हैं, तो उसमें पानी के अंदर तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। उन तरंगों की वजह से पानी के अंदर जो है, पानी जो है हिलने शुरू हो जाता है और हमको जो मछलियाँ दिख रही थी वो हमको दिखाई नहीं देती। तो ये जो मतलब अगर और उन मछलियों को फिर से देखने का अगर आपको जो ये मतलब अनुभव लेना हो उस मछलियों का, फिर उस सुंदर मछलियों का अनुभव लेना हो, तो फिर आपको तब तक इंतज़ार करना पड़ता है, तब तक आपको बैठ के आराम से बैठना पड़ेगा जब तक उस पानी के अंदर तरंगे शांत ना हो जाएँ, और फिर वही जल जो पूरी तरह से शांत हो जाएगा तब आपको वो मछलियाँ दिखाई देंगी। तो यहाँ पर जो पत्थर हैं, वो पत्थर क्या हैं? वो ऐसे टाइप की सिचुएशंस हैं जो दूसरे लोग आप पर फेंकते हैं। पानी के अंदर जो आपकी चेतना है, पानी के अंदर जो तालाब के अंदर जल है, उसको कंपैरिज़न किया हुआ है आपकी चेतना के माध्यम से। तो कोई दूसरा आके ऐसे शब्द, अपशब्द आपको बोल देता है या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपकी चेतना के अंदर हलचल मच जाती है, तो क्या हो जाएगा? तो आप जो भी मतलब जो उसके बाद में क्या इमीडिएटली जो आपके अंदर पहले तो उसने क्या किया, उसने ऐसे अपशब्द कहे, तो वो क्या है? वो पत्थर हैं जो उसने फेंके, और उसके बाद में आपकी चेतना क्या है? जो चेतना है वो क्या है? वो पानी है। जो तालाब के अंदर पानी है वो आपकी चेतना है। तो जो शांत थी पहले, मगर उसने जब पत्थर फेंके तो आपकी चेतना ज़रा डगमगा गई और आप एकदम अफेक्टेड हो गए। अच्छा, उसके बाद में जो तरंगे आती हैं, तो तरंगे क्या आती हैं? तो हमारे अंदर जब वो गुस्सा उत्पन्न होता है, तो वो उस पानी के अंदर जो है तरंगे पैदा हुए, हमको गुस्सा आना शुरू हो गया। तो ऐसा अगर सिचुएशन हो जाए, तो क्या होगा जाए? तो हमको मछलियाँ दिखाई नहीं देगी। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उस कार्य से हमारा जो केंद्र है, हमारा ध्यान है, फ़ोकस है, वहाँ से हट जाएगा। और जैसे ही हट जाएगा, तो हम क्या करेंगे? जो कार्य हम कर रहे हैं, उस कार्य के अंदर हम गलती अवश्य करेंगे, क्योंकि हमने उनके जो शब्द सुने, जो अपशब्द उन्होंने कहे थे वो सुने, और हमारे जो चेतना है डगमगा गई, और उसके बाद के अंदर जो उद्गार उत्पन्न हुए, जो गुस्सा उत्पन्न हुआ, इस वजह से जो हम वो कार्य कर रहे हैं, तो वो कार्य के अंदर हम अवश्य गलती करेंगे। तो इसलिए अगर अगर किसी ने मतलब जो एक बात याद आती है, एक अमोल पालेकर की एक मूवी थी, जिसके अंदर अमोल पालेकर को जो है मेरे ख़्याल से दूसरे एक एक्टर हैं, सीनियर, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो उनको टेबल टेनिस खेलना सिखाते हैं। तो टेबल टेनिस जब भी खेलना सिखाते हैं, तो सामने जो है असरानी है, जो बहुत अच्छा प्लेयर है टेबल टेनिस का। तो टेबल टेनिस का जो प्लेयर, वो क्या करता है, जभी भी शॉट्स स्टार्ट करना शुरू करता है असरानी, तो ये क्या करते हैं, अपने अमोल पालेकर उसको हाथ दिखा के रोकते हैं, बोलते हैं, फिर अपने शू की लेस बाँधते हैं। फिर दूसरी बार वो सर्व करना शुरू करता है, तो फिर उसको हाथ दिखाते हैं, फिर अपने जुराब को ठीक करते हैं। फिर तीसरी बार जब भी वो वापस सर्व करने को शुरू करता है असरानी, तो फिर उसको अमोल पालेकर क्या बोलते हैं, ठहरो, ठहरो, और वो वहाँ पे टेबल पे जाके कुछ होता नहीं है, उसके बाद में वो टेबल की उधर से दूर हटाते हैं। तो इस प्रकार से तो उसको गुस्सा आ जाता है, किसको? असरानी को गुस्सा आ जाता है, उसका ओपोनेंट है, और वो गलती करता है, और वो जो सर्व करने जाता है तो सीधा फाउल हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि इस तरह से उसने सिचुएशन उत्पन्न की, शब्दों से नहीं, मगर ऐसी सिचुएशन उत्पन्न की, ऐसे एक्शन से उसने ऐसी सिचुएशन उत्पन्न की कि वो असरानी का जो सर्व करने का चांस है, इट बिकम्स अ फाउल। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम उसको उत्तेजित करते हैं, सामने वाला उत्तेजित होना नहीं चाहिए, पर वो उत्तेजित हो जाता है और ऐसे जो गलतियाँ कर देता है। तो अभी इनको कैसे कंट्रोल किया जाए?
तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो पहले तो गुस्सा आता है तो गुस्से को आने नहीं देना नहीं चाहिए, हमको अपने आप को संयम से मतलब काम करना चाहिए। चैंट द नेम्स ऑफ कृष्णा, जब तक भगवान का नाम जपते रहो, जब तक आपके अंदर जो उद्गार उत्पन्न हो रहा है वो पूरी तरह से शांत नहीं जाए और आपकी चेतना फिर उसी लेवल पर नहीं आ जाए जिस चेतना से आप फिर मछलियों को देख सकते हो। तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए अपने को जो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए? तो उसके अंदर जो इसमें कुछ 8-10 पॉइंट्स हैं, जितना क्लास में कवर हुआ तो इतना करेंगे, नहीं तो फिर बाकी के किसी और क्लास के अंदर उसको ले सकते हैं। तो पहली जो बात आती है, जो पहली इसमें बात आती है, टेक द पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स इक्वली। अगर सपोज किसी ने आपको आपकी गलती बताई तो उसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को साथ में लो। उसने जो बताया उसको सुनो, समझने का प्रयास करो। समझने का प्रयास करने के बाद में देखो, हो सकता है कि जो वो कह रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो, और हो सकता है कि जो वो कह रहा है या कह रही है वो हमारे अच्छे के लिए। तो ये ऐसे जब जो आप ऐसे उसको एक्सेप्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि आपका जो गुस्सा था, जो आप एक तरफा सोच रहे थे, यानी आप सिर्फ नेगेटिव सोच रहे थे और उसने जो बात बताई, आप उस बात के अंदर कुछ पॉजिटिव बातें हैं, तो ये क्या इक्वल हो जाएगा, तो आपका गुस्सा कम हो जाता है। मगर व्हेन वी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे द फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज जो मतलब किसी से भी एक्सपेक्ट मत करो। तो बोलते हैं एक्सपेक्टेशन इज द रीजन ऑफ यू गेटिंग एंग्री। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये काम ऐसा करे और मेरे हिसाब से करे, वो एक्सपेक्टेशंस रखते हो और वो आदमी ऐसा नहीं करता, दैट मीन्स आपको फिर उस आदमी से या उसकी हर चीज से आपको गुस्सा आता है। तो ये देयर आर टू प्रोबेबिलिटीज कि एक तो आपने एक्सपेक्टेशंस की, आपने किसी के साथ में उम्मीद रखी या किसी के साथ में आपने सोचा कि भाई ये मेरे हिसाब से या मेरे जैसे मैंने सोचा है उस हिसाब से ये चलेगा, और वो अगर नहीं चलता है या अगर चलता है तो आपको आनंद आता है, अगर वो नहीं चलता तो वो आपको गुस्सा आ जाता है। तो पहले तो एक्सपेक्टेशंस इज वन ऑफ द रीजंस जिससे हमको गुस्सा आता है। तो व्हाट इज द एडवाइस? जब अगर आपको मतलब जब गुस्सा आता है तो जो जैसे भगवत गीता के अंदर है, जो भक्त होता होगा शीतोष्ण सुख दुख था। शीत और उष्ण, अगर ठंडी और गर्मी सबके सिचुएशन सबको एक समान देखे या सबको एक समान से समझने का प्रयास करे तो फिर उसको गुस्सा नहीं आए। अनलेस वी ट्रीट बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इक्वली वी कांट गेट रिलीफ फ्रॉम द इमोशनल आउटबर्स्ट। जब तक हम जो हमारे फेवर के अंदर बातें हैं, जो हमारे नकारात्मक बातें, इन दोनों को एक तरह से हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारे हृदय के अंदर जो है उद्गार उत्पन्न होंगे ही होंगे। तो इसको पहले हम इन दोनों को एक प्रकार पॉजिटिव और नेगेटिव को एक तरह से लेना चाहिए। उसके बाद में इफ वी उसके बाद में दूसरा बहुत अच्छा जो पॉइंट बताया है कि लेक्चर के अंदर, वो कहते हैं कि जब आप मतलब ये विचार कर लेते हो कि जो भी स्थिति है वो प्री डिटरमाइंड है, वो मतलब ऑलरेडी भगवान ने जैसे यहाँ पर बताया है, श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य के अंदर, इट इज डिटरमाइंड, इट इज डिस्टाइन्ड बाय द लॉर्ड, ऑर्डेन्ड है, भगवान ने पहले से उसको निर्धारित करके रखा हुआ है। तो अगर हम जब ये सोचते हैं कि मैंने कर्म ऐसे किए हैं जिसकी वजह से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, तो इसका मतलब जब और ये भगवान की कृपा है, भगवान का ही अरेंजमेंट है, जब आप इसमें भगवान को ले आओगे तो आपको लगेगा कि भाई तब आप गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो। द प्रॉब्लम विद द पीपल इज दैट दे वांट ओनली पॉजिटिव रिजल्ट्स। हमेशा वो सोचते हैं कि जो भी मैं कार्य करता हूँ उसमें जो भी है वो सकारात्मक होना चाहिए। जरूरी नहीं है आप सकारात्मक, आपने किसी को चांटा मार दिया, आपने सोचा कि इसका है वो सामने वाला सह लेगा, जरूरी नहीं है। वो अगर गुस्से में तो आपको 2 लगा देगा, तो नकारात्मक आपने सोचा क्या था कि वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा आपने चाटा मारा तो वो नकारात्मक में अंदर वो आपको 2 लगा देता है, फिर आगे बात बढ़ जाती है। तो हमेशा वो सोचते हैं कि भाई जो भी मैं सोचता हूँ ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो मैंने सोचा वैसे ही होना चाहिए, नेगेटिव उसका रिजल्ट नहीं होने चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। देन व्हाई शुड वी बी अफेक्टेड फॉर इनएविटेबल थिंग्स। और दूसरी बात कि जो प्री डिस्टाइंड है, जैसे मैंने कर्म किया है उसको मुझे भुगतना है और ये ऑलरेडी है, हमको पता है, ये ज्ञान हमको है, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो है गुस्सा कम होता है। उसके बाद में आता है बिकम फ्री फ्रॉम योर कंडीशन स्टेटस। वी आर नॉट ब्लिसफुल फ्री सोल्स। हमको पता है कि हम ऐसे जो सच्चित आनंद नहीं है,
हम सच्चित आनंद के एक अंश हैं, बरोबर है, मगर हम सच्चित आनंद नहीं है। हम इस भौतिक जगत के अंदर फंसे हुए हैं। और क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि हम बद्ध जीव हैं और हमने ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो हमको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हर टाइम हमारे लिए जो कंडीशन होगी एकदम सही होगी। उसके बाद में स्टॉप एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स। कृष्णा एडवाइसेस अस टू लिव विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट्स। भगवान कहते हैं कि भाई तुम जो भी कार्य करते हो उस कार्य का जो फल क्या इंतजार मत करो, फल का आप जो है इच्छा मत करो। व्हाट इज रॉन्ग इन एक्सपेक्टिंग अ पर्टिकुलर रिजल्ट? इट इज रिस्की। आपको पता है कि जो मैंने कार्य किया है और आपको उसके बाद में क्या लगता है कि जो मैंने कार्य किया उसका मुझे फल इमीडिएटली मिलना चाहिए और इतना मिलना चाहिए, तो ये गलत है। तो भगवान तो यहाँ पर जो लेक्चर के अंदर बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि आपको मैं बिल गेट्स जितनी दौलत दूं। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि आपको बिल गेट्स इतना पैसा दूं, मगर आप उसको क्या कर देते हो? आप उसको सीमित कर देते हो। आप बोलते हो भगवान मैं चाहता हूं कि मुझे ये जॉब मिल जाए। अरे भगवान तुमको बिल गेट्स इतना पैसा देने का प्रयास कर रहे हैं, इतना उसने सोच के रखा है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम उनको सीमित कर देते हो। तुम कहते हो कि मुझे खाली अच्छा जॉब मिल जाए। भगवान कहते हैं यार मैं तो उसको इतना देने के लिए तैयार हूँ, फिर ये जॉब जो है खाली एक जॉब मांग रहा है, जब मैं तो उसको बिल गेट्स इतना पैसा देना चाहता हूँ। तो आपने उसको सीमित कर दिया। तो भगवान क्या कहते हैं? बोलते फिर ये अभी इसको थोड़ा समय लगेगा, इसको बिल गेट्स इतना ही पैसा देना है, तो आपको जॉब नहीं देते। तो आप फिर और निगेटिव हो जाते हो। तो कहने का मतलब आपको जो भी कंडीशन हो उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और ऐसे अगर नेगेटिव भी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, यानी आपको जॉब नहीं मिलता, क्योंकि भगवान चाहते हैं आपको बिल गेट्स इतना पैसा दे, तो आपको अगर जॉब नहीं मिलता तो आप जो है ना आप एग्रेशन करते हो और आपको गुस्सा आने शुरू हो जाता है। फिर आप क्या करते हो? फिर वो भगवान को भला बुरा कहना शुरू कर देते हो। तो ये इस वजह से आपको जो एवरीथिंग इज वी आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, अगर ये सोच के अगर चलेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। फॉलो व्हाट कृष्णा सेज इन भगवद गीता अबाउट द कॉज ऑफ एंगर। भगवान कहता है, भगवान कैसे कहते हैं, जो भगवद गीता अगर हम पढ़ेंगे तो भगवद गीता के अंदर चैप्टर 2 के अंदर 62 श्लोका के अंदर बताया गया कि जिन जिन चीजों के साथ हम आसक्ति करते हैं वो चीजें हमको मिलती नहीं है, और वो चीज मिलती नहीं है, इसकी वजह से हमको गुस्सा आता है। तो ये हमको भगवद गीता के अंदर से ये सीखने को मिलता है। उसके बाद में Consider yourself as a dust, not a big stone. This is very profound statement. ये 5वीं पॉइंट है। तो बता रहे हैं कि आप अपने आप को धूल समझो। तो इससे क्या हो जाएगा? When you think that you are some big identity, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा कोई यहाँ पर बॉस हूँ, ये नीचे जो मेरे काम करने हैं फराश हैं और नीचे जो काम करने वाले प्यून्स हैं, you become angry when you are not sufficiently or fully honored. आप जब भी आपको अगर पूरी तरह से जो श्रेय नहीं मिलता है या पूरी तरह से आपको इज्जत नहीं मिलती, तो आपको गुस्सा आ जाता है और आप उसमें क्या करते हो? आप गुस्सा आता है तो फिर आप उनको सामने वाले को भला बुरा कहते हो और उसको 2 बातें सुनाते हो। बट अगर आप अपने आप को इनसफिशिएंट समझोगे कि भाई इनसिग्निफिकेंट समझोगे कि नहीं यार मैं तो तुच्छ हूँ, इस आदमी के अंदर ये गुण है, इसके अंदर ये अच्छी बातें हैं, जब आप अपने आप को इनसिग्निफिकेंट समझोगे, जब आप अपने आप को एक समझोगे कि मैं धूल हूँ, तो धूल होती है ना, वो जब अगर उसके ऊपर कोई प्रहार होता है ना तो वो रिएक्ट नहीं करती, मगर एक पत्थर होता है, पत्थर ने अगर जो है जो पत्थर होता है वो बड़ा होता है, दिखाई देता है, तो वो जो है उसको ज्यादा रिस्क है। यानी धूल के ऊपर कोई पैर रखेगा, धूल क्या रिएक्ट करेगी? कुछ नहीं करेगी, मगर पत्थर के ऊपर किसी ने पैर ठोका तो उसको पक्का जो है मार लगेगी। तो हमको जब भी हम समझेंगे अपने आप को कि मैं धूल हूँ, इसके लिए हम जितने भी शास्त्रों के अंदर पढ़ते हैं वहां पर यही कहा जाता है कि कंसिडर योरसेल्फ एज अ डस्ट, नॉट एज अ बिग स्टोन। अपने आप को पत्थर मत समझो। तो ये कुछ बातें थी जो क्लास के माध्यम से मैंने सीखी थी और समझने का प्रयास किया था। तो यही आपके समक्ष मैंने जो है रखा है, और इसमें किसी और को कोई पॉइंट्स ऐड करनी हो तो हम वो सुन सकते हैं, और कोई जो मेरे रियलाइजेशन से ज्यादा कुछ मैंने बोल दिया हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल लेक्चर। प्रभु आपने बहुत अच्छे से जो एक्चुअल में मतलब हाउ टू कंट्रोल आवर एंगर, और उसके ऊपर आपने बहुत सारे पॉइंट्स आपने कवर किए प्रभु। सो थैंक यू सो मच। जैसे कि हम वो आप जो सीन अभी देख रहे हैं कि किस तरह से परीक्षित महाराज को गुस्सा आ रहा है, तो वो अपने लाइफ में उसको किस तरह से डालना है,
तो दैट वाज वेरी नाइस पॉइंट फ्रॉम योर साइड प्रभु, कि आपने बहुत अच्छे से उसको कवर किया प्रभु। सो थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन था प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कि अगर हम भागवतम देखते हैं तो ये जो स्टोरी है प्रभु, जैसे कि ये जो कथा है, ये सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं भागवतम, और फिर हम्म, सुत गोस्वामी जी सौनकादि ऋषि को बोल रहे हैं। तो जी अभी जो प्रसंग हो रहा है वो मतलब सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को सुना रहे क्या प्रभु? ये भी बिकॉज दिस इज ऑल्सो कम इन भागवतम। ये जो प्रसंग जो हम्म, परीक्षित महाराज का है वो भी भागवतम में आ रहा है। तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि वही प्रसंग सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को ही बता रहे हैं? बिकॉज ये हम्म, भी प्रसंग भागवतम में आ रहा है ना प्रभु। तो हाउ वी कैन हाँ अंडरस्टैंड दिस? नहीं प्रभु, मैं प्रश्न नहीं समझा, और अगर किसी ने प्रश्न समझा हो, जो गोपी मोहन प्रभु है या कोई है, तो दे कैन रिप्लाई ऑन दिस। हाँ, मतलब प्रभु जैसे कि अभी ये जो भागवतम में जो ये प्रसंग आ रहा है प्रभु, जी परीक्षित महाराज का जो प्रसंग है, तो हम सुने कि मतलब हम लोग ये भी जानते हैं कि भागवतम को भी सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को ही बताया। जी, उनके सामने उनका ही प्रसंग किस तरह से बता रहे प्रभु? अभी भी क्लैरिटी नहीं है प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप शायद हो सकता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, नहीं या कोई है। नहीं नहीं प्रभु। या प्रभु। आई थिंक जी पवन प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर आपने समझाया है प्रभु जी। प्रभु जी, सर्वदेव प्रभु जी का प्रश्न ये है कि परीक्षित महाराज का जो वर्णन आ रहा है यहाँ पे, तो सुखदेव गोस्वामी जी ने भी परीक्षित महाराज जी को पहले बताया। तो यहाँ पे जो प्रसंग चल रहा है, सुत गोस्वामी जी सोनकादि ऋषियों को बता रहे। तो सर्वदेव प्रभु जी पूछ रहे हैं कि परीक्षित महाराज को ही उनका वर्णन बताया जा रहा है, या इसे कैसे समझना चाहिए? तो ये समझना चाहिए कि सूत गोस्वामी जो है वो ऋषियों को बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे, आगे देखेंगे, तो पूरा जो वर्णन आया है कि इनमें क्या क्या क्वालिटीज थी, सूत गोस्वामी जो बता रहे हैं कि भाई परीक्षित महाराज की क्या क्या क्वालिटीज थी। तो इट इज परीक्षित महाराज की जो क्वालिटीज हैं, वो जो है सूत गोस्वामी सौनक आदि जो ऋषिज हैं नैमिषारण्य में, उनको बता रहे हैं। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। If any clarification is required, we have to check on that. या प्रभु, या थैंक यू प्रभु। बस हरे मुझे कृष्ण। वो एक कंफ्यूजन हो गया था प्रभु, मतलब मतलब ऑल्दो सुखदेव गोस्वामी जी भी परीक्षित महाराज को भागवतम बता रहे हैं, तो ये हाँ, प्रसंग भी बता रहे हैं क्या? ऐसा मुझे मतलब एक डाउट आ गया था प्रभु। नहीं, मगर सुखदेव गोस्वामी अगर परीक्षित महाराज को बता रहे होंगे, तो ये क्वालिटीज वो परीक्षित महाराज के सामने कैसे बता रहे हैं? सूत गोस्वामी इज रेफरिंग टू द qualities of Parikshit Maharaj, and he is giving an additional जिसको बोलते हैं explanation to the Sonak Adi Rishis की परीक्षित महाराज के साथ में क्या हुआ, और इसके ऊपर जो है चर्चा हो रही है। This is what I understand. हरे कृष्णा। या थैंक यू सो मच प्रभु फॉर क्लियरिटी प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो किसी भक्त को अगर कोई कमेंट है ऑन दिस टुडे श्लोका, सो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा ठाकुर, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। बहुत दिन के बाद आपका चेहरा देखा, बहुत ही अच्छा अरे क्लास था, बहुत ही अच्छा। कैसे क्रोध को कंट्रोल करना है, बहुत कुछ अपने बहुत से सारे पॉइंट अपने बताया। तो मैंने भानु महाराज का भी एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहा था प्रभु, जब आपने जैसे अतिथि के बारे में बताया, जो घर पे अतिथि जब आता है उसको कैसे संबोधन करना चाहिए, तो भानु महाराज को भी उसमें बताया, हमारा घर पे कोई भी शत्रु होने तो हमारा शत्रु दुश्मन जो भी आए, हमको हमारे साथ उसके साथ इतना व्यवहार करना चाहिए, उसको मतलब मालूम नहीं पड़ना है वो हमारा दुश्मनी है। तो उसमें वो भी कर रहा है, जो हमारा हम जो गृहस्थ होता है ना, तो हमारा गृहस्थ का ये जो है हार्ड, हम जो भी कृष्ण भक्त है, जो भी गृहस्थ है, हमारा क्या हार्ड एंड फास्ट रोल है। कोई भी अगर अतिथि आया तो उसको बैठने के लिए देने का, एक गिलास जल देने का, हाँ, ये हमारा कम से कम मिनिमम
ये जो अगर होगा तो हम उसको खाना पीना भी खिला देंगे, लेकिन मिनिमम जो होता है हार्ड एंड फास्ट रूल, उसको बैठने के लिए देने का, एक गिलास जल देने का, तो एक गृहस्थ के लिए बोलता है बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो इसमें मेरे को आपके पास हमारा एक क्वेश्चन होता है, जैसे हमारा हम लोग जो भक्त है, हमारा भक्तों को कोई पाप नहीं करने का, कोई पुण्य नहीं करने का, तो ये जो यहाँ पे जो पुण्य का बात किया है, तो ये पुण्य का कैसे हम लोग मतलब कैसे करो प्रभु? प्रभु ये पुण्य का बात नहीं है, इसमें जो ये एटिकेट्स है, ये हमारा जो बेसिक एटिकेट्स है, इसके लिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर क्या बोलते हैं, अगर वो बोलते हैं कि ये तो मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट है, आई जस्ट रीड द एग्जैक्ट वर्ड्स जो श्रील प्रभुपाद बताते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ गुड मैनर्स। ये तुम्हारे जो संस्कार हैं, वो संस्कार आप शास्त्रों के हिसाब से वो संस्कार हैं, तो इसमें ये नहीं होता है कि आपको पुण्य मिलता है। ये तो बात अच्छी है कि आप किसी को भी कुछ भी दोगे तो आप यही बोलोगे कि आपने उसको जो जल दिया, वो ठाकुर जी को भी ऑफर्ड जल होएगा, तो वो जल पी रहा है, तो आपने प्रसादम दिया उसको। कुछ अगर आप उसको फल फूल खाने के लिए भी देते हो, तो वो भी ठाकुर जी को ऑफर्ड होगा, क्योंकि आप गृहस्था हैं और आप डिवोटी हैं, तो आप प्रसादम उसको ऑफर करोगे। तो जब ये दोनों चीजें लॉर्ड को ऑफर्ड है और प्रसादम उसको मिलता है, तो वो तो मतलब ये एक जो इसको बोलते हैं ना, नई कर्म है, नहीं जो है विकर्म है, बट ये अकर्म है। यानी आप किसी न किसी तरह से उसके अंदर जो उसका मन के अंदर बदलाव आएगा, जब वो अगर ये प्रसादम खाएगा, तो उसके अंदर कुछ जो है करुणा आएगी या कुछ चेंजेस आएंगे उसके अंदर, क्योंकि ऐसे बिना चेंज की वजह से, बिना किसी चेंज के तो प्रसादम रहने से रहा, वो 100% में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। तो जो मन मुटाव है, जो भी अपने बीच के अंदर कुछ भी दूरियां हैं, वो हो सकता है कि वो प्रसादम खाने से कम हो जाए। तो उससे आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा, मगर इट विल बी अ काइंड ऑफ, जिसको बोलते हैं ना कि वो अकर्म होगा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, समझ गया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जस्ट टू रिकैप जो पॉइंट्स थी ना, अपना क्रोध को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, तो उसके खाली जो 4-5 पॉइंट्स थी, वो उसकी बुलेट पॉइंट्स बता दूंगा। टेक द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स इक्वली। उसके बाद में दूसरी पॉइंट आती है, बिकम फ्री फ्रॉम योर कंडीशन स्टेटस, यानी अपने आप को, जो हम बद्ध जीव हैं, तो वो याद रखना चाहिए और उससे हमको छुटकारा पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तीसरा है स्टॉप एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स। फोर्थ जो है, फॉलो व्हाट कृष्णा सेज इन भगवद गीता अबाउट द कॉज ऑफ एंगर। गुस्सा क्यों आता है, उसका भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक के अंदर बताया, तो उसके ऊपर समझना चाहिए। कंसिडर योरसेल्फ एज अ डस्ट नॉट अ बिग स्टोन। अपने आप को धूल समझे, कोई बड़ा जो है पत्थर न समझे। और उसके बाद नो योर रियल आइडेंटिटी ऑफ सर्वेंट ऑफ कृष्ण। आप अपने आप को भगवान का दास समझें और ये सोचें कि भाई जो भी ये स्थिति है वो क्यों हुई है, क्योंकि ये ऑर्डेन्ड है भगवान की, ऑलरेडी भगवान ने डिसाइड कर चुके हैं, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार हमको मिलना है। हरे कृष्ण।